नौमि श्रीमाधवानन्दं सच्चिदानन्दविग्रहं अशेक्षणाय प्रसादेन तीर्णोऽहं भवसागरं लसद्दया तरङ्गकं क्षमारविन्दशोभितं यतीन्द्रहंससेवितं भजामि माधवं नदं विवेकरत्नभारिणं भवार्तितापहारिणं यतीन्द्रहंससेवितं भजामि माधवं नदं यदर्थमेव भावितं तदर्थमेव दायिनं यदङ्घ्रिरक्तपङ्कजं भजामि माधवं नदं श्लोकत्रयमिदं पुण्यं ब्रह्मानन्दप्रदायकं य पठेत् प्रातरुत्थाय स गच्छेत् परमं पदम् इति श्रीमद्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीमत्स्वामी माधवानंद पूज्यपाद प्रमुख शिष्य शास्त्री स्वामी नित्य सद्गुरु प्रातः स्मरण स्तोत्रम संपूर्ण। પૂજ્ય સ્વામીજી મહારાજ આજના કાર્યક્રમનો દીપ પ્રાગટ્ય કરી કાર્યક્રમને વિધિવત રીતે ખુલ્લો મૂકી રહ્યા છે, ત્યારે આપણે સૌ તેમાં પણ સહકાર આપીએ. હું જે નામ બોલું છું એ સેવક ભાઈઓને પણ સાથે જોડાવા વિનંતી છે. પૂજ્ય સ્વામીજી મહારાજ શ્રી, પૂજ્ય મહામંડલેશ્વર પુણ્યાનંદ ગિરિજી મહારાજ શ્રી, પૂજ્ય સ્વરૂપાનંદ સરસ્વતી મહારાજ શ્રી, પૂજ્ય વિષ્ણુ ચૈતન્ય સ્વામી મહારાજ શ્રી અને શ્રી પ્રકાશાનંદ ગિરિજી મહારાજ શ્રી દીપ પ્રાગટ્ય કરી રહ્યા છે. ત્યારે સેવક ભાઈઓમાં શ્રી પોપટભાઈ મનજીભાઈ, શ્રી મનુભાઈ દેવજીભાઈ, શ્રી કાનજીભાઈ મગનભાઈ, શ્રી હિંમતભાઈ કાકડિયા, શ્રી નાગજીભાઈ લક્ષ્મણભાઈ મોણપરા આ સેવકો પણ સાથે જોડાશે અને આપણે આ દીપ પ્રાગટ્યને તાળીઓના ગગડાટથી વધાવી લઈશું. नमोस्त्वरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः. नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमोस्तुते वासनाथ वासुदेव च वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते. પૂજ્ય સ્વામીજી મહારાજના હસ્તે દીપ પ્રાગટ થઈ રહ્યું છે. આપણે તાળીઓના ગગડાટથી વધાવી લઈશું. બહેનોને નમ્ર વિનંતી કે જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં પોતાનું સ્થાન લઈ અને બેસી જાય, શાંતિ જાળવો. સદગુરુ દેવા કી આપણો કાર્યક્રમ હવે ટૂંક જ સમયમાં શરૂ થાય છે. એક સમૂહમાં આપણે પ્રાર્થના કરશું અને પછી પૂજ્ય સ્વામીજીની આદેશ અને આજ્ઞા અનુસાર કાર્યક્રમને આગળ વધારશું. સૌ એકી સાથે બોલીએ, ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વરા ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. તમેવ માતા ચ પિતા તમેવ બંધુ ચ સખા તમેવ વિદ્યા દ્રવિણમ તમેવ સર્વ મમ દેવ દેવ. સદગુરુ દેવ કી જય, સ્વામીજી મહારાજ કી જય, સનાતન ધર્મની જય,
ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ હર. મંડપની બહાર ઊભેલા દરેક સેવક ભક્તોને નમ્ર વિનંતી કે તેઓ સ્ટેજ પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે ડોમની અંદર, સભા મંડપની અંદર. અને રામદેવ પીર મંડળવાળા ભાઈઓને એક પાકીટ જીડ્યું છે કોઈ બેનનું, તો બહાર કાઉન્ટર ઉપરથી મેળવી લે એમની નિશાની આપીને. હા, અથવા ઊંચો હાથ કરે તો પણ આપી દે છે. સદગુરુ દેવ કી જય. બોલ સચ્ચિદાનંદ ભગવાન કી. 4 જણા બોલ્યા, કેટલા બોલ્યા? બોલ સચ્ચિદાનંદ ભગવાન કી. આજનો આ મહામાંગલિક મહામહોત્સવ પરમ પૂજ્ય સદગુરુની મૂર્તિને આપણે નગર યાત્રા કરાવી. ચોકટ ગામનો આજનો બહુ જ મોટો મહોત્સવ, અને એ ગરબો પાછો અદ્ભુતપૂર્વ ગરબો હતો હે. અને એ આપણે વાજતે ગાજતે ધામધૂમથી મહાપુરુષોના આખા ગામના નગર યાત્રા કરીને આપણે અત્યારે માધવધામમાં પધાર્યા છીએ. તો આજનો આ 139માં મહોત્સવની પૂર્વ સંધ્યાએ દૂર દૂરથી પધારેલા મહાપુરુષો આપણને 5 મિનિટ આપણને આશીર્વાદ પ્રદાન કરશે. તો એ શૃંખલાની અંદર સૌથી પ્રથમ ગૌતમેશ્વર સિંહોથી પધારેલા મહામંડલેશ્વર સ્વામી સ્વરૂપાનંદજી મહારાજ શ્રી આપણને 5 મિનિટ પૂર્વ સંધ્યા અનુસાર એ આપણને આશીર્વાદ પ્રદાન કરશે. સ્વામી સ્વરૂપાનંદજી મહારાજ શ્રી. ઓમ બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયન્તિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ ચૈવ ઓમકારાય નમો નમઃ. સદાશિવસમારભ્યાં શ્રી શંકરાચાર્ય મધ્યમામ અસ્મદાચાર્ય પર્યંતમ વંદે ગુરુ પરંપરામ. વંદે ગુરુ પરંપરામ. અનંત કોટી બ્રહ્માંડ નાયક ભગવાનના શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. એવમ પરમ શ્રદ્ધેય બ્રહ્મલીન પૂજપાદ ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. આજ જેમને પ્રસંગ બનાવીને આપણે એકઠા થયા છે એવા પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ અનંત વિભૂષિત બ્રહ્મલીન, જેમની 139મી નિર્વાણ તિથિ મહોત્સવ ઉજવી રહ્યા છે એવા પરમ વંદનીય પૂજ્ય માધવાનંદ સ્વામીજીને મહારાજના ચરણોમાં મારા કોટી કોટી વંદન. એવમ વર્તમાન પીઠાધીશ્વર માધવ પીઠાધીશ્વર સ્વામી જગદીશાનંદ સાગરજી મહારાજ, એવમ અનંત વિભૂષિત પ્રાતસ્મરણીય અર્ચનીય વંદનીય સ્વામી પુણ્યાનજી મહારાજ મહામંડલેશ્વરજી, મારી બાજુમાં બેઠેલા મહામંડલેશ્વરજી મહારાજ, એવમ વેદાંતાચાર્ય પ્રકાશાનંદ ગિરિજી મહારાજ, એવમ મંચસ્થ સંતવૃંદ, મારી સન્મુખ બિરાજમાન માધવાનંદ સ્વામીજીને 139મી તિથિ નિમિત્તે ભાવ વંદના કરવા આવેલા એવા તમામ ભક્તજનો, ભક્તવતી માતાઓ, બાળકો, યુવાનો, ચોગઠની ગ્રામ્ય પ્રજા. મારે માટે ચોગઠ એટલે એક તીર્થભૂમિ ગણાય. બ્રહ્મલીન પૂજપાદ ગુરુદેવ મહારાજ અહીંયા વસતા હતા, અહીંયા આવતા હતા. એટલે આ ચોગઠની ભૂમિ એક તો છગન બાપાને યાદ કરીએ તો એક વીરભૂમિ કહેવાય, દાતાની ભૂમિ કહેવાય, અને સંતોના જ્યાં પગલાં પડ્યા હોય સંતોની ભૂમિ કહેવાય. એટલે આ ભૂમિને પણ મારા વંદન. આપ બધાને 139 વર્ષ પહેલાં એક સવાલ ઊભો થાય કે આપણે માણસ નથી, તો માણસ બનાવવા માટે જેમણે ઘર બાર પરિવારનો ત્યાગ કરી અને સમાજના ઉત્થાન માટે મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત થાય. એક વખત મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત થઈ જાય ને પછી મોક્ષની ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી, એ પોતાની મેળે મળી જાય. અને એ
મુક્તિનું દ્વાર બતાવવા માટે 139 વર્ષ પહેલાં આ ધર્મ ધુરંધર આ પૂજ્ય ગુરુદેવ માધવાનંદ સ્વામીજી મહારાજે આપણા હૃદયમાં જ્યોત પ્રગટાવી અને એ જ્યોતને પ્રગટાવ્યા પછી આપણે ઋણ મુક્ત થવા માટે બધા ભેગા થયા છે. આ બધા સંતો તમને આશીર્વાદન આપશે કે સાચા સ્વરૂપમાં આપણે માણસ બનીએ. વિશેષ આજ 5 મિનિટનો સમય છે એટલે ઘણા મંડલેશ્વરજી મહારાજ સંતો પણ બોલવાના. આ બધાના હૃદયમાં માધવાનંદ સ્વામી મહારાજ ખૂબ ખૂબ અમે વરસાવે અને સાચા સ્વરૂપમાં માણસ બનીએ એવી જ અભ્યર્થના સાથે હરિઓમ તત્સત, હરિઓમ તત્સત, હરિઓમ તત્સત. બોલ સચ્ચિદાનંદ ભગવાન કી, માધવાનંદ સ્વામીજી મહારાજ કી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સ્વામીજી. એ જ શૃંખલાની અંદર દિલ્હીથી પધારેલા પરમ પૂજ્ય પ્રાતસ્મરણીય મહામંડલેશ્વર સ્વામી વિષ્ણુ તીર્થજી મહારાજ શ્રી આપણને પ્રસંગાનુસાર આશીર્વાદ પ્રદાન કરશે. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. तस्मै श्रीगुरवे नमः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरुः साक्षात् परब्रह्म. तस्मै श्रीगुरवे नमः. तस्मै श्रीगुरवे नमः. अलहच्चिदानंद भगवान की जय. शंकर भगवान की जय. हर हर महादेव शंभो. हर हर महादेव शंभो. प्रथमतः भगवान का स्मरण करें. श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण. श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन बोलो जय श्री सच्चिदानंद भगवान। परम पूज्य परमादरणीय श्रीमत परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री दक्षिणामूर्ति पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य परमादरणीय श्रीमत परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ माधव पीठाधीश्वर श्री स्वामी जगदीशानंद सागर जी महाराज, परम पूज्य परमादरणीय श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, प्रकाशानंद जी महाराज, मंचस्थ यतिवृंद, विद्वत मंडल, प्रभु प्रेमी सज्जन, भक्तिमयी श्रद्धामयी माताओं, ब्रह्मलीन श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य अनंत श्री भूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ विदेह मुक्त कैवल्य मुक्त परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, माधवानंद जी महाराज, जिनके निर्वाण के पावन अवसर पर आज यहाँ ये महोत्सव मनाया जा रहा है। 139 वर्ष पूर्व उन्होंने पांच भौतिक ये जो देह है, विग्रह है, इसका त्याग किया। तो महापुरुषों का ये जो निर्वाण महोत्सव होता है, इसका बड़ा महत्व है, इसकी बड़ी महिमा है। महापुरुषों का जीवन मुक्त, विधेय मुक्त, कैवल्य मुक्त, ऐसे जो महापुरुष होते हैं, उनका स्मरण करने से ही बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। और जब हम उनका स्मरण करते हुए किसी महोत्सव का आयोजन करते हैं, तो महापुरुषों की कृपा से आनंद की वर्षा होती है, आनंद की वर्षा। ये जो आनंद है, ये ब्रह्म का स्वरूप है। स्वयं ब्रह्म ही यानी परमात्मा जो है वो आनंद रूप है। ब्रह्म जो है वो स्वयं आनंद स्वरूप है। आनंदो ब्रह्म। वेद भगवान कहते हैं कि ये जो परमात्मा है उसकी अनुभूति होती कि नहीं होती है। परमात्मा को आप देख पाते हो कि नहीं पाते हो?
आपके हृदय के अंदर परमात्मा प्रकट होता है कि नहीं होता? तो ये जो आनंद है, आज का ये महोत्सव देख करके ऐसा लग रहा है जैसे आनंद की वर्षा हो रही है, क्योंकि जहां परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाता है वहां आनंद ही आनंद होता है। तो आज ये जो महोत्सव प्रारंभ हो गया है तो ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ आनंद ही आनंद है। तो जहाँ आनंद का अनुभव आता है, जहाँ आनंद की अनुभूति होती है, सुख की, परम सुख की, परमानंद की अनुभूति होती है, तो समझ लीजिए कि परमात्मा की अनुभूति हो रही है। वास्तव में देखा जाए तो सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप तो परमात्मा है, ब्रह्म है। आज इसी परमात्मा के इस आनंद को लेकर के, सुख को लेकर के और लोग कहते हैं कि हम सुखी है। आनंद तो परमात्मा का स्वरूप है, सुख तो परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए वेद भगवान कहते कि योगी भूमा तत्सुखम। जो सर्वव्यापक ब्रह्म है, परमात्मा है, वो सुख स्वरूप है। अब वो जो परमात्मा है उसकी किंचित अनुभूति जिन लोगों को होती है तो उस अनुभूति को लेकर के भी लोग अपने आप को बड़ा सुखी मानते हैं। लेकिन महापुरुषों की कृपा के बिना परमात्मा का बोध नहीं होता है। अभी आप श्रवण कर रहे थे कि जब महाराज थे, महाराज जी लगभग 140 साल पहले, उससे भी पहले समझ लीजिए, तो उन्होंने ज्ञान का प्रचार किया। जिस ज्ञान को वेदांत कहा जाता है, जो ज्ञान मुक्ति देने वाला है, मोक्ष देने वाला है, और वही महाराज जी की जो ये परंपरा है, इसमें कई महापुरुष हुए। तो ब्रह्मलीन श्री स्वामी अखंडानंद सागर जी महाराज, उनके भी पहले ब्रह्मलीन शिवोम स्वामी जी महाराज, उनके भी पहले, और वर्तमान में श्री स्वामी जगदीशानंद सागर जी महाराज। ये सर्वत्र देश विदेश, भारत और अन्य अन्य देशों में भी जाते आते हैं और वेदांत का प्रचार करते हैं। ये वेदांत ही परमात्मा को मिलाने वाला है, ज्ञान ही परमात्मा को मिलाने वाला होता है। ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की ऐसी महिमा है कि इस संसार में भी अगर सुखी रहना है तो ज्ञान के बिना नहीं रह सकते। कोई परलोक जाता है तो परलोक में भी बिना ज्ञान से सुख नहीं मिलता। और मोक्ष और मुक्ति की बात तो अलग है। सो अनादिकाल से ये महापुरुषों का बड़ा आशीर्वाद, बड़ी कृपा रही है कि जो बड़ा दुर्लभ है, जो कभी सुनने को नहीं मिलता, देखने को नहीं मिलता, ऐसा वेदांत वो महापुरुषों के मुखारविंद से प्रकट होता रहता है। तो ये स्वामी जी महाराज बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और ऐसा ये जो महोत्सव है, ये सदा सर्वदा मनाना चाहिए, हर वर्ष प्रतिवर्ष मनाते रहना चाहिए। ये पुण्य तो देता ही है, सुख भी देता है, और ज्ञान का प्रचार भी करने का एक माध्यम है। सो अपने जीवन को मंगलमय, सुखी, आनंदमय बनाने के लिए ऐसे महोत्सवों की बड़ी आवश्यकता होती है। जीवन मुक्त, विदेह मुक्त, कैवल्य मुक्त, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी महापुरुषों का स्मरण करने से जीवन मंगलमय बनता है। तो बड़ी अच्छी बात है कि स्वामी जी महाराज की कृपा से आज यहाँ ये महोत्सव प्रारंभ हो गया है।
और इस महोत्सव के माध्यम से कई महापुरुषों के दर्शन भी आपको हो रहे हैं और महापुरुषों का उपदेश भी श्रवण करने को मिलेगा। ये बड़ी महाराज की कृपा है, श्री स्वामी जगदीशानंद सागर जी महाराज की। और भी महापुरुष आए हैं, उनका भी और जो है ये मंगलमय वचन, आनंद सुख प्रदान करने वाले वचन, उपदेश, आशीर्वाद, वो भी ग्रहण किया जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोल सच्चिदानंद भगवान की, માધવાનંદ સ્વામીજી મહારાજ की जय। આગળ દિલ્હીથી પધારેલા પરમ પૂજ્ય પ્રાતસ્મરણીય અનંતશ્રી વિભૂષિત ક્ષત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ દક્ષિણામૂર્તિ પીઠાધીશ્વર આજની આ પૂર્વ સંધ્યાના સભાધ્યક્ષ છે। તેઓશ્રીના ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપણે પ્રાપ્ત કરવાના છે। એ પહેલાં પરમ પૂજ્ય પ્રાતસ્મરણીય અનંત શ્રીભૂષિત શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ સરળ સ્વભાવ ન મન કટુલાઈ યથાલાભ સંતોષ સદાઈ વેદાંતોધ્યાને રમણીયમાણા પરમ પૂજ્ય સદગુરુદેવ આપણને આશીર્વાદ પ્રદાન કરશે। આપણે શાંતિથી ગ્રહણ કરીએ। બોલ સચ્ચિદાનંદ ભગવાન की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ भद्रन्नोऽपि वातय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अलख निरंजन जय सच्चिदानंद माधवानंद हरे हरे रे। अलख निरंजन जय सच्चिदानंद माधवानंद हरे हरे। अलख माधवानंद हरे हरे गुरु माधवानंद हरे हरे। 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 सबघट व्यापक जय सच्चिदानंद माधवानंद हरे हरे। अलग निरंजन जय सच्चिदानंद माधवानंद हरे हरे। घट घट व्यापक जय सच्चिदानंद माधवानंद हरे हरे। घट घट व्यापक जय सच्चिदानंद माधवानंद हरे हरे। प्रेम थी बोलो जय सच्चिदानंद माधवानंद हरे हरे। प्रेम थी बोलो जय सच्चिदानंद माधवानंद हरे हरे। भाव थी बोलो जय सच्चिदानंद माधवानंद हरे हरे। भाव थी बोलो जय सच्चिदानंद माधवानंद हरे हरे। अलख निरंजन जय सच्चिदानंद माधवानंद हरे हरे। निरंजन जय सच्चिदानंद माधवानंद हरे हरे। अलख निरंजन जय सच्चिदानंद माधवानंद हरे हरे। निरंजन जय सच्चिदानंद माधवानंद हरे हरे। सदगुरु देवनी जय सनातन धर्मनी जय। अद्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवाननी जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। परम पूजनीय प्रातस्मरणीय सूत्रीय ब्रह्मनिष्ठ सच्चिदानंद स्वरूप दक्षिणामूर्ति पीठाधीश्वर आचार्य महामनेश्वर जी महाराज एवं परम पूजनीय प्रातस्मरणीय सूत्रीय ब्रह्मनिष्ठ सच्चिदानंद स्वरूप स्वामी महामनेश्वर स्वामी विष्णु चैतन्य तीर्थ जी महाराज एवं परम पूजनीय प्रातस्मरणीय सूत्रीय ब्रह्मनिष्ठ सच्चिदानंद स्वरूप महामनेश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज एवं परम पूजनीय योगानंद आश्रम महंत श्री स्वामी प्रकाशानंद स्वामी जी महाराज तथा विश्व वंदनीय संत वृंद
તથા પ્રિય સજ્જનો, પરબ્રહ્મ પરમાત્માની મહતી અનુકંપાથી આપણે આજે બ્રહ્મદેવ સ્વામીજી મહારાજશ્રીની જે 139મી નિર્વાણ જયંતિના પૂર્વ સંધ્યાએ આપણે પૂજ્ય સ્વામીજી મહારાજશ્રીને વાજતે ગાતે આનંદથી ધૂન બોલતા બોલતા આપણે માધવ ધામની અંદર લાવ્યા. જે આપણે અત્યાર સુધી એ તિથિનો આપણે એ લાભ લેવાને માટે વાટ જોઈ રહ્યા હતા, જે મહાપુરુષોના મુખારવંતથી આપણે શ્રવણ કરી રહ્યા છીએ અને આજે કાલે આખો દિવસ આપણે શ્રવણ કરવાનું છે. પણ મહાપુરુષોના એ આશીર્વાદથી, એમના વચનામૃતથી આપણા જીવનની અંદર કંઈક લાભ થાય, કંઈક જીવન પરિવર્તન થાય, તો જ આપણે સ્વામીજી મહારાજશ્રીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી એ કહેવાય છે. આપણે ધીરે ધીરે પોતાના જીવનની અંદર કર્મ પણ કરતા રહીએ, ભક્તિ પણ કરતા રહીએ અને સાથે સાથે જ્ઞાન પણ લેતા રહીએ. તો જે ત્રણેય પ્રકારની જ્યારે એ પૂર્ણવતીને પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે ત્યારે એ જીવન પૂર્ણ બને છે. કહેવાય છે ખેડ ખાતરને પાણી અને અનાજ લે લાવે તાણી. એમ આપણું જીવન એ પૂર્ણ ક્યારે બની શકે? તો જેમ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને કર્મયોગ, ભક્તિયોગ અને જ્ઞાનયોગ બતાવ્યો, એ રીતે આપણે પણ આપણા જીવનની અંદર કર્મ, ભક્તિ અને જ્ઞાન એ પ્રાપ્ત કરવાને માટે આવા એ મહોત્સવની અંદર ધીરે ધીરે આપણા એ જીવનની અંદર ઉતરે અને આપણે એ જીવનની અંદર એ સાચા સુખના ભાગીદાર થઈ શકીએ. કેમ કે સંસારના પદાર્થનું સુખ, વિષયનું સુખ તો એ આજે છે અને કાલે નષ્ટ થવાનું છે. જે માનવ જન્મ મળ્યો છે એ માનવ જન્મની અંદર સાચા સુખને પ્રાપ્ત કરવાને માટે જ આપણે એ મહાપુરુષોને એ શ્રવણ કરી રહ્યા છીએ. તો આપણું જીવન કઈ રીતે એ પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત થાય એને માટે આવા માધવ સ્વામીજી મહારાજશ્રીની એ પુણ્યતિથિને નિમિત્તે હજી કાલે પણ આપણે મહાપુરુષો એ પધારશે અને આપણે એમના એ આશીર્વાદ પણ લઈશું અને આપણે એના દ્વારા એ જ્ઞાન મેળવીશું. તો પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સર્વને શક્તિ સંપન્ન બનાવે, જ્ઞાનના ભાગીદાર બનાવે, જન્મ મરણના ચક્કરથી મુક્ત કરે એવી પરમાત્માની પાસે પ્રાર્થના કરીએ કે સર્વત્ર સુખિનઃ સંતો સર્વે સંતો નિરામયા સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તો મા કશ્ચિદ દુઃખભાગ ભવેત. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. બોલ સચ્ચિદાનંદ ભગવાન કી. બહેનોનો નમ્ર વિનંતી છે કે તેઓ પોતપોતાનું સ્થાન ન છોડે. દરેક બહેનો થોડીવાર શાંતિથી બેસે અને કથા શ્રવણ કરે. હવે આગળ આજની જે સાંધ્ય સભા છે એના પરમાધ્યક્ષ, શાસ્ત્રમાં કીધું છે બિનો પુણ્ય પુંજ મિલહી નહીં સંતા. આપણો બહુ પુણ્યનો ઉદય થયો હોય અને આપણા ભાગ્યનો ઉદય થાય ત્યારે આપણને સાક્ષાત ભગવાન સ્વરૂપ એવા સંતોના દર્શન થાય છે. તો એવા પુણ્ય સ્વરૂપ સ્વામીજી મહારાજ દિલ્હીથી આપણને દર્શન દેવા માટે પધાર્યા છે. આપણી આગ્રહ અને નિમંત્રણને માન આપી પોતાનો કિંમતી સમય છોડીને આ મહોત્સવને દીપાવવા માટે દિલ્હીથી પધારેલા પરમ પૂજ્ય પ્રાતસ્મરણીય અનંત શ્રી વિભૂષિત શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ દક્ષિણામૂર્તિ પીઠાધીશ્વર સ્વામી પુણ્યાનંદ ગિરિજી મહારાજ શ્રી આપણને સુંદર જ્ઞાન સાથે ગમ્મતથી જ્ઞાન પ્રદાન કરશે, આશીર્વાદ પ્રદાન કરશે. આપણે શાંતિથી તેને ગ્રહણ કરીએ. બોલ સચ્ચિદાનંદ ભગવાન કી. ઓમ ભદ્રન્નો અપિવાતય મનઃ
ओम शांति शांति शांति। 139वां 40 में एक कम, हाँ? यही ना। निर्वाण महोत्सव है ये। निर्गतो बाण यस्मात् इति निर्वाण, ऐसा बोलते हैं। बाण माने तीर होता है, तीर। पहले क्षत्रिय लोग धनुष में से तीर छोड़ते थे ना, उसको बाण बोलते हैं। तो किसी निशाने में जाके वो चुभ जाता है, तो चुभेगा तो जिसमें चुभेगा उसको नुकसान करेगा। आदमी के शरीर में, केले के खंभे में, और उस बाण को यदि निकाल दो तो चुभन खत्म हो गया, तो निर्वाण हो गया। वैसे ही आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। और ये आत्मा शरीर के अंदर प्रकट हो गया। तो शरीर जड़ है और आत्मा के प्रभाव से ये जो जड़ शरीर है चेतन कहलाने लगा। हर चीज इसके अंदर चेतन बन गया। और जड़ पदार्थ चेतन जैसा भले ही लग जाए, लेकिन वास्तव में वो चेतन है ही नहीं। न होने से अंदर 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 थोड़ा चुभन सा होता है। सत्यानृतयो मिथुनी कृत्य नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार। ये हमारे जीवन में सत्य भी है और असत्य भी है। शरीर असत्य है, जो बचपन में था युवावस्था में नहीं है, जो युवावस्था में है प्रौढ़ावस्था में नहीं है, जो प्रौढ़ावस्था में है वृद्धावस्था में नहीं है, और शरीर छूटने के बाद फिर नहीं है। लेकिन जब तक ये शरीर के अंदर आत्मा व्यक्त है, प्रकट है, तब तक हर व्यक्ति व्यक्ति कहलाता है। व्यक्त होने से ही व्यक्ति कहलाता। तो जड़ और चेतन मिलकर के जब तक रहा, तब तक जैसे बड़े बड़े जीवन मुक्त ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों को भी अंदर से ऐसा लगता है कि हम किसी बंधन में हैं, हमारे अंदर कोई चीज चुभ रहा है। हमारी विशुद्ध चेतना के अंदर जड़ वस्तु प्रकट होकर के अहंकार बन रहा है, ईर्ष्या बन रहा है, क्रोध बन रहा है, लोभ बन रहा है, और पता नहीं कितनी चीजें बन के हमारे अंदर अशांति उत्पन्न कर रही। जिस समय ये बंधन सारा निवृत्त हो गया, उस समय वो निर्वाण माने मुक्त हो गया। तो ये जो मुक्ति है, ये अपने आप में एक महान उत्सव की चीज है, साधारण नहीं है। तो हम लोग जिन महापुरुष के 139वें निर्वाण महोत्सव मनाने जा रहे हैं, और उसका कारण है, अभी अभी दीप जलाया गया। शास्त्रों में ऐसा बताया, अग्निर्ज्योति ज्योति ही अग्नि। अग्नि प्रकाश स्वरूप है और प्रकाश ही अग्नि है। सूर्यो ज्योति ज्योति ही सूर्य। सूर्य प्रकाश रूप है और प्रकाश ही सूर्य है। और इतना होने के बाद भी ये अग्नि कहां पर कैसे प्रकट हो रहा है? किसी के घर में आग लग जाए, है अग्नि प्रकट हो गया, वो सुख नहीं देता, सब कुछ जला के भस्म कर देता है। जंगल में आग लग जाए, सारे पेड़ जल जाते हैं, सारे प्राणी मर जाते हैं। और जलती हुई दीपक को ले जा करके यदि तेल के अंदर ऐसा उल्टा डुबो दोगे तो ये दीपक जलता नहीं रहता, बुझ जाता है। लेकिन जो दीपक जलता
उसको तेल या घी में रखना पड़ता है। तेल और घी दीपक के ईंधन है, उसके बिना जल नहीं सकता। उसके बाद भी उल्टा करके यदि रख दोगे तो दीपक नहीं बनेगा, जलेगा नहीं, प्रकाश नहीं देगा, डूब करके उसी में बुझ जाता है। हर व्यक्ति के हृदय के अंदर ज्ञान है, रूप ज्ञान है, रस ज्ञान है, गंध ज्ञान है, और भी कितने प्रकार के ज्ञान विज्ञान सबके अंदर है, लेकिन इसमें ब्रह्म ज्ञान नहीं है। और बाकी जितने भी ब्रह्म ज्ञान से अतिरिक्त जो ज्ञान है, ये पूरी दुनिया को जला के भस्म कर देता है। और जो ब्रह्म ज्ञान है ये दीपक के समान है, ये प्रकट होता है बुद्धि में। और दीपक में भी आखिरी जो तेल रखोगे तो किसी बर्तन में रखोगे, ये शरीर उसका बर्तन है। और इसमें बुद्धि उसके अंदर से निकला हुआ रुई का धागा, एक बत्ती है। और अग्नि के संयोग होने से ये अग्नि नीचे भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा, जहां जलेगा स्थिर होगा। और ये स्थिर जो दीपक का प्रकाश है आसपास के सारे अंधकार को मिटा देता है। इस दीपक की एक विशेषता है, एक दीपक जलाओ, दीपक से दूसरे दीपक जलाओ, उससे तीसरे दीपक जलाओ, उससे चौथी जलाओ, हजारों जला सकता है। और पहले दीपक में जितना प्रकाश रहा, आगे जलने वाले दीपक में भी उतने प्रकाश रहेगा, वो भी इतने दीपकों को आगे प्रकाशित करता जा सकता है। ये दीपक की महत्ता है। ये तो अग्निमय दीपक की बात हो गई। और आज से 139 साल वर्ष पहले जिन महापुरुष ने आप लोगों के हृदय के अंदर ज्ञान दीपक जलाया, वो ज्ञान दीपक एक से अनंत बन गया, एक से अनंत बन गया। और ये दीपक कभी समाप्त नहीं हुआ, बढ़ता गया, बढ़ता गया। हम ये मानते कि 139 साल पहले शायद ये दीपक जो चल रहा था उसके प्रकाश में इतने लोग शायद उपस्थित नहीं हुए होंगे, हुए थे। हाँ? और समय बढ़ता गया, ये दीपक की संख्या बढ़ती गई, समय बढ़ता गया, प्रकाश बढ़ता गया, समय बढ़ता गया। और है एक ही व्यक्ति। स्वामी जी कह रहे हैं कि हमारे मान रख करके दिल्ली से स्वामी जी आ गए। ऐसा नहीं है, उल्टा है। हम आपके मान रखने के लिए आए, ऐसा नहीं है। हा? ये जो जलने वाले दीपक के प्रकाश ने हर एक के हृदय के अंदर एक सत चित आनंद को प्रकट कर दिया, उसने हमको खींच लिया। हम आए बिना रह नहीं सके। हा? और इसी ढंग से आप भी आ गए। इसलिए सबको खींचने वाला, सबको एकत्र करने वाला, सबको एक सूत्र में बांधने वाला और सबको एक सही दिशा के अंदर ले जाने वाला ये जो ज्ञान ज्योति इतने सारे जन समुदाय को एकत्र करके आज आनंद में विभोर कर रहा है। ये आनंद कभी टूटने वाला नहीं है, ये आनंद कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ये उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला जाएगा। आज हमारे बड़े सरल और बड़े आत्मनिष्ठ स्वामी जगदीशानंद जी, उनसे पहले स्वामी अखंडा जी महाराज, और उनसे इस ढंग से ये जो परंपरा चली ये उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला जा रहा है, कम नहीं हो रहा। ये परंपरा बढ़ती, हम तो हर साल देखते हैं कि ये परंपरा बढ़ती जा रही है। तो ये दीपक का स्वभाव ही यही है कि एक से अनंत बनेगा, अनंत से और अनंत 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 होता चला जाए, इसका कोई अंत नहीं आएगा। और ये जो दीपक का प्रकाश मात्र प्रकाश नहीं, ये आनंद हृदय में प्रकाशित हो रहा है। जो आप इतनी बड़ी परिक्रमा करके आए, सिर के ऊपर कलश, और कलश के ऊपर ये जो क्या क्या बोलते हैं, जवारा, ये तो आज पहली बार देखा, बड़ा अच्छा लगा। हा? हमने किसी से कहा भाई इसके फोटो वोटो लेके रखना। हा? ये तो नई सृजना है, पहले हमने देखा नहीं था।
इतने सारे जवाहरा सिर पर लेकर के ये मंगलमयी यात्रा हमने कभी देखा नहीं था। बड़ा सुंदर लगा। खाली मनुष्यों ने ये यात्रा किया ऐसा नहीं है, अब की बार तो सवारी भी धर्म की सवारी थी। धर्म समझते हो? हाँ, धर्म माने बैलगाड़ी। ऐसे बैल को धर्म ही माना है। हाँ, बैल को धर्म माना है। तो धर्म की सवारी चली, धर्म के अनुयायी चले, जवारा लेकर के चले, आनंद में चले। और वैसे घोड़े को लक्ष्मी का भाई माना है। हाँ, घोड़े को लक्ष्मी का भाई माना। हाँ, क्योंकि लक्ष्मी भी ये जो सागर के मंथन से उत्पन्न हुई, घोड़ा भी वहीं से उत्पन्न हुआ। इन दोनों का ऐसा संबंध है। गाय, घोड़ा और गोवंश, ये जो धर्म, और ये जहां जहां होते वहां पर लक्ष्मी प्रसन्न होकर नाचने लगती है, खुश होती। इसीलिए शास्त्रकार ऐसा बोलते कि यदि लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हो, घर में गाय रखो, गोवंश रखो, और गोवंश नंदी का स्पर्श करो, घोड़े को रखो, हाथी को रखो। ये सब लक्ष्मी के भाई बहन हैं। और इन सब के साथ ही वैभव जुड़ा हुआ है। अश्व पूर्वाम रथ मध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनीम, ये लक्ष्मी इन सब में सुशोभित होती है। सुवर्ण से, अमृत से, अश्व से, हाथी से, घोड़े से। और ये सारी चीजें मिलकर के आपके हृदय के अंदर आनंद प्रकट करता है। ये आनंद ज्ञान से भिन्न नहीं है। इसीलिए जय सच्चिदानंद, जय माधवानंद। सत माने परमात्मा की सत्ता, चित्त माने उसका ज्ञान, और आनंद, ये दोनों जहां प्रकट हुए अपने आप में आनंद के रूप में परिणत हो गया। ये आनंद, यही उत्सव है। तो एक व्यक्ति ब्रह्म में लीन हो गए, मुक्ति प्राप्त कर लिया, उससे पहले उन्होंने इतने सारे लोगों के लिए मुक्ति का रास्ता जो प्रशस्त किया, यह अपने आप में स्वयं में उत्सव है, महोत्सव है, और बहुत बढ़िया महोत्सव है। इसमें कोई हम आपके मान रखने के लिए नहीं आए। और इस महोत्सव के मूल कारणभूत स्वामी जी महाराज की अंतरात्मा ने ये सारे महात्मा सहित आप लोगों को यहाँ खींच लिया। और ये सब आपके, हमारे सबके कल्याण के लिए इतना बड़ा ये उत्सव है। ये आपके सबके, हमारे कल्याण में कारण बने। इसी शुभकामना के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। बोल सच्चिदानंद भगवान की। થાકી ગયા? લાડવા બનાવ્યા છે બહાર? જોરથી એક જયકારો કરીએ આપણે, પછી આપણે સદગુરુની આરતી કરશું, પછી મહાપ્રસાદ ગ્રહણ કરશું. રાત્રે ફરી આ જ મંડપની અંદર 8:30 વાગે પ્રાર્થના શરૂ થશે. પછી મહાપુરુષોના મુખારવિંદથી આપણે સત્સંગ કરશું. અત્યારે આપણે આરતી કરીએ અને જોરદાર જયકાર કરીએ. બોલ સચ્ચિદાનંદ ભગવાન કી, માધવાનંદ સ્વામીજી મહારાજ કી.